Hey guys, hi. So we are going to continue where we left, and I hope you remember we left at the RBC discussion. We talked about most of the major characteristics of RBC, its shape, its ability to carry oxygen because of the hemoglobin presence, and the kicking out of nucleus so that the enough space is there for hemoglobin to fill up, right? So all those things we talked about. Now we are going to do a bit more, right? So what is a bit more? Now, before we continue to discuss this table, it's time that we understand what's an antigen, what's an antibody, all of that sort of things. Okay, so let's first do that, and then we'll come back to this table and expand on this. Now, give me a moment. Okay, so let us assume we are talking about any cell. Okay, any cell for that matter. Any cell will have its own proteins, the proteins that it is supposed to make because of its own genetic instruction. Okay, now what happens is these cells periodically, in fact human cells periodically, they're bound to break its own proteins and display on its surface. It's like an identity card showing the identity card, this is me, this is my kind of cell. Okay, so this protein displayed on the surface of a cell will be counted as an antigen. Okay, why is it counted as an antigen? Because it is antibody generating. Why am I calling it antibody generating? Because you see, our bodies are trained to identify cells or molecules that do not belong to it. Okay, so if I produce an antigen, my body must know that this is my antigen. The antigen, the molecule belongs to my body, and it should not try to attack the cells of my own body. But my body also has a mechanism to understand that the antigen that it has been displayed does not belong to it. उसको ये पता चल जाता है कि जो एंटीजन डिस्प्ले किया गया है वो हमारी बॉडी का नहीं है, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है. सो इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में what do? We create एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज बोले तो फाइटर प्रोटीन्स. ये एंटीबॉडीज क्या है? कुछ नई चीजें नहीं है. एंटीबॉडीज बोले तो फाइटर प्रोटीन्स. अब ये फाइटर प्रोटीन्स बनाता कौन है? अभी हम देखने वाले हैं. दीज फाइटर प्रोटीन्स आर क्रिएटेड बाय अ स्पेशल क्लास ऑफ WBCs. ओके, ये फाइटर प्रोटीन्स एक स्पेशल क्लास ऑफ WBCs हैं, वो बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. नाउ what we have to understand is कि एंटीजन दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC. ठीक है, सो ये एंटीजन है, ये कहाँ है? RBC के सरफेस पे. और RBC का अमाउंट कितना है बेटा? आपको भी पता है, RBC का अमाउंट इज 5.4 मिलियन. 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड. ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट हो गया. अब ये फाइटर प्रोटीन्स जो WBC सिक्रीट करते हैं, ये फाइटर प्रोटीन्स कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं? दीज फाइटर प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड इनटू दी ब्लड प्लाज्मा. अब ब्लड प्लाज्मा का कितना परसेंट प्रोटीन होता है? भाई ब्लड प्लाज्मा का सिर्फ 7 to 8% इज प्रोटीन. इस प्रोटीन में क्या सारा एंटीबॉडीज है? नहीं बेटा, half of the proteins are just albumin. So overall दिखाया जाए तो less than 1% of the blood, total blood, less than 1% of the total blood and total proteins, less than 1%. Okay, that is आपका एंटीबॉडीज. आप समझ रहे हो? तो आप पहले कंपैरिजन समझो. अमाउंट का कंपैरिजन बहुत जरूरी है, और ये समझना कि एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है. तो एंटीजन इज एनी मॉलिक्यूल विच इज अ शो ऑफ. शो ऑफ मीन्स सेल बता रहा है इम्यून सिस्टम को, देखो मैं आप ही का सेल हूं, मुझ पर अटैक मत करना.
और इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को, WBCs अपने सेल्स को ट्रेन कर देता है कि भाई देखो ये हमारे बॉडी का ही सेल है, इस तरह की अगर मॉलिक्यूल किसी सेल के सरफेस पे मिली तो उसको नहीं मारना है, उसके खिलाफ फाइटर प्रोटीन्स नहीं बनाने हैं, राइट। सो दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी। अगर मेरे कोई भी एंटीजन के खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तो ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को अटैक करेगी। अटैक करके क्या क्या कर सकती है? बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एंटीबॉडी किसी एंटीजन को बाइंड करके इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे सकता है कि देखो ये रहा एंटीजन। फैगोसाइटिक सेल्स यानी ऐसे इम्यून सेल्स जो दूसरे सेल को खाते हैं, उनको इन्विटेशन देता है कि आ जाओ इसको खा जाओ। ठीक, एक तरीका हुआ ये। और भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीजन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अरेस्ट कर देते हैं एक जगह, सो दैट अब इम्यून सिस्टम इसको देख रहा है। पहले ये छोटे 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 एंटीजन मॉलिक्यूल्स और सेल्स, एंटीजेनिक सेल्स, पैथोजेनिक सेल्स पूरे ब्लड में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो उसको देख पाना इम्यून सिस्टम के लिए इजी नहीं था। एंटीजन से बाइंड करके एंटीबॉडी ने एंटीजन की विजिबिलिटी को बढ़ा दी फॉर द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम उसे देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और किल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये है साइकिल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, नॉर्मल डिस्कोर्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब हमें समझना है कि आरबीसीज और एंटीजन एंड एंटीबॉडीज से क्या फर्क पड़ता है। आरबीसी के कारण एंटीजन और एंटीबॉडीज जो क्रिएट होते हैं, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव? जस्ट अ मिनट, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव? देखो, अगर मैं ब्लड को क्लासीफाई करने की कोशिश करूं, ब्लड क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करूं, तो मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। यानी अगर मैं ब्लड को ग्रुप करना चाहूं तो मोर देन 30 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है। ठीक है, एग्जाम्पल MN सिस्टम, ABO सिस्टम, RH सिस्टम, बहुत तरह के सिस्टम्स हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से दो सिस्टम्स हैं? इट इज द ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। और हर एक सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है बेटा? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगर मेरे पास कोई एंटीजन है तो मेरी बॉडी मेरी सहमति के लिए, मेरी हेल्थ के लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अगर मेरे पास एंटीजन नहीं है तो मेरी बॉडी मोस्ट लाइकली उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी को लगता है कि ये एंटीजन आ सकता है या आ गया है और इसको अटैक करना बहुत जरूरी है। ये बेसिक डिफरेंस है हम इन दो चीजों में। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? पहले एबीओ सिस्टम को समझना है, एबीओ सिस्टम से जुड़े प्रॉब्लम्स को, फिर आरएच सिस्टम को और आरएच सिस्टम के से जुड़े प्रॉब्लम्स को। तो एबीओ सिस्टम क्या कहता है? एबीओ सिस्टम कहता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा कैसा हो सकता है। एबीओ सिस्टम के हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, हमारा ब्लड ग्रुप हो सकता है बी, हमारा ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। सेम चीज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में और ज्यादा स्ट्रांगली पढ़ेंगे। अभी हम बस मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे हैं, उस समय हम जेनेटिक लेवल पे भी पढ़ेंगे। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास कौन सा एंटीजन होना चाहिए? एंटीजन ए होना चाहिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरे पास एंटीजन बी होना चाहिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो नॉन फंक्शनल एंटीजन, देखो कई बुक लिख देती है एंटीजन ही नहीं है, और हम समझेंगे ऐसा कहना सही नहीं है। ओके, थोड़े समय में, इसीलिए अभी के लिए करेक्ट यूसेज का यूज करेंगे कि नो फंक्शनल एंटीजन फॉर द एबीओ सिस्टम इज देयर। ठीक, अब हमने अभी क्या रूल बनाया? हमारा रूल बहुत सिंपल था, डोंट मेक एंटीबॉडी। हमारा रूल क्या था? डोंट मेक एंटीबॉडी फॉर सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन बोले तो मेरे पास जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी मत बनाओ। दैट्स द आइडिया। सो इफ my blood group is A, my antigen is A. My blood group is B, antigen is B. Blood group is O, no functional antigen is found.
अब मेरा बॉडी एंटीबॉडी कैसे बनाएगा? इस रूल को फॉलो करते हुए एंटीबॉडी एंटी ए नहीं बनेगा, ठीक? एंटीबॉडी एंटी ए नहीं बनेगा, बट एंटीबॉडी एंटी बी बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्यों बनेगा भाई? क्योंकि दो तरीके से एंटीबॉडी बन सकता है। देखो, होता क्या है कि हमारी बॉडी रैंडमली बहुत तरीके का एंटीबॉडीज बना रही होती है, ठीक है? हमारी बॉडी बहुत तरीके का एंटीबॉडीज बना रही होती है। अब ये एंटीबॉडीज एकदम छोटे क्वांटिटीज में बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज एंटीबॉडीज आर देयर फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर। अब ये एंटीबॉडी इनिशियली बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारा सामना पैथोजन से हो गया, एंटीजन से हो गया, तो हमारी बॉडी उस तरह के एंटीबॉडी को लार्ज सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में बनाएगी, ठीक है? ऐसे समझ लो कि मुझे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि चोर, कोई थीफ, कोई पैथोजन कैसा दिखता है। मैं उसके खिलाफ हथियार तैयार रखूंगा, ठीक? बट अगर मुझे पता चल गया कि मेरे एनवायरनमेंट में कोई चोर या थीफ है, तो वो वाला हथियार मैं ज़्यादा रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये तो आके अटैक कर ही सकता है। लॉजिकल है ना? सेम वे आपकी बॉडी लाखों तरह की बनाती है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बोलूँ तो 11 मिलियन तरह के एंटीबॉडीज बनाने का कैपेबिलिटी रखती है। बट ये 11 मिलियन छोटे अमाउंट्स में बनता है, और जैसे जैसे बॉडी का एंटीजन एक्सपोजर बढ़ता है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज को हम अमाउंट में इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा बेसिक फंडा है। अब क्या है, ये जो ए एंटीजन है ना, इसी तरह के एंटीजन वाले बैक्टीरिया आपके सराउंडिंग में है। बी एंटीजन के एंटीजन तरह के बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग में है। तो बॉडी ने इनिशियली छोटा अमाउंट ऑफ एंटी बी बनाया था, बट इवेंचुअली हम उस बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाते हैं और बॉडी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटी बी बना देती है। बट वंस अगेन रिमेंबर, ओनली लेस देन 1% ऑफ योर प्लाज्मा प्रोटीन इज एंटीबॉडी, ठीक? उसी तरह बी एंटीजन अगर मेरे पास है तो मैं एंटी बी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी बॉडी एंटी ए बनाएगी। उसने पहले रैंडमली बनाया था, फिर एनवायरनमेंट से वैसे बैक्टीरिया से मैं एक्सपोज हो गया जो एंटीजन बी की तरह दिखता था, और एंटीबॉडी एंटी बी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में बन गया। अब ओ का मतलब कोई फंक्शनल एंटीजन नहीं है, तो मेरे पास एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा, ठीक है? एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। अब हम आरएच सिस्टम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको इग्नोर मारो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एबीओ सिस्टम। अब यहां से खेल शुरू होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, ठीक? अब मान लेते हैं रिसीवर ए है, डोनर के केस को एग्जामिन करेंगे। रिसीवर मान लेंगे फर्स्ट केस में ए है, सेकंड केस में बी है, थर्ड केस में ओ है, ठीक? अब आपको लग रहा होगा कि हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी एंड ओ। वैसे एक और होता है, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे इन अ मोमेंट। चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है? मैं उसे लास्ट के लिए रख रहा था, बट अभी ही कर लेते हैं। एक ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी भी होता है। ए बी का मतलब मेरे पास दोनों एंटीजन हैं, और ए बी का मतलब मेरे पास नो एंटी ए, मेरे पास एंटी ए नहीं होगा, नो एंटी बी, यानी मेरे पास कोई भी फंक्शनल एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है? ए मतलब सिंगल एंटीजन, बी मतलब सिंगल बी एंटीजन, ओ मतलब नो फंक्शनल एंटीजन, ए बी मतलब दोनों एंटीजन। उसी तरह से एंटीबॉडी, ए के पास एंटी बी के पास एंटी ए, ओ के पास दोनों, ए बी के पास कुछ भी नहीं, ठीक? सो डोनर हम 4 केसेस में कंज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, ए बी ओ एन ए बी। सॉरी, रिसीवर, नॉट डोनर, रिसीवर। अब डोनर कंसीडर करते हैं।
अगर अगर ए ने ए ब्लड ग्रुप लिया तो कोई इशू ही नहीं होगा। क्यों? ए ब्लड ग्रुप के पास ए जैसा ही सब कुछ है, तो लड़ाई होने के चांसेस ही नहीं होंगे। तो हम सेम ब्लड ग्रुप को कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि भाई जो अगर सेम ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा है तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी, लड़ाई होने की संभावना ही तब होगी जब कोई दूसरा एंटीजन और एंटीबॉडी आएगा। तो अब कंसीडर कर लेते हैं कि बी ब्लड ग्रुप लेने की मैंने कोशिश की, ए में तो कोई इशू नहीं है। अब बी ब्लड ग्रुप लेने की कोशिश की तो बी का मतलब है एंटीजन बी, बी का मतलब है एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी एंटी ए। अब एंटीजन बी कहां है बेटा? आरबीसीज पर। एंटीबॉडी ए, एंटी ए कहां है? प्लाज्मा में। अगर मैं किसी से ब्लड ले रहा हूं तो मान लेते हैं ना कि मेरा मे बी 500 ml ऑफ ब्लड लॉस हुआ होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 1 ml ब्लड लॉस हुआ होगा, तभी तो मैं ब्लड ले रहा हूं। अब मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड ऑलरेडी था, ठीक है, उसमें से 1 लीटर चला गया, 4 लीटर था अभी भी, और उसके बाद मैं 1 लीटर या आधा लीटर ब्लड किसी से ले रहा हूं। तो उस आधे लीटर या 1 लीटर ब्लड में सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में क्या होगा? एंटीजन या एंटीबॉडी? सोचो, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में क्या होगा? 45% ऑफ आवर ब्लड इज एंटीजन। क्यों? 45% ऑफ द ब्लड इज आरबीसी। तो हमेशा रिसीव्ड यानी डोनर का एंटीजन मायने रखता है। ओके, रिसीव्ड डोनर का एंटीजन मायने रखता है। ओके, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एंटीजन को सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में इनटेक करते हैं। एंटीबॉडी जो हम ले रहे हैं वो मिनिमम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद का 4 लीटर ब्लड था और मैंने किसी से 1 लीटर मान लो ब्लड लिया भी, तो उसका सिर्फ 1% प्लाज्मा था और वो मेरे प्लाज्मा में आके डाइल्यूट हो गया। तो जो एंटीबॉडी मुझे मिली ना, दैट इज ओके, बिग डील, डाइल्यूट हो गया, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। रिसीव्ड एंटीजन यानी डोनर का एंटीजन वो फायदा या नुकसान करेगा। अब अगर आपने बी ब्लड ग्रुप लेने की कोशिश की तो ये जो रिसीव्ड एंटीजन बी है ये आके एंटीबॉडी एंटी बी से लड़ाई करेगा। ठीक है, आपस में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये एंटीबॉडी कई सारे रिसीव्ड आरबीसीज को क्लम्प करेंगी और फिर मेरी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स क्लॉट जाम हो सकती है और मेरा ब्लड फ्लो रुक सकता है। सो बी इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी थी वही एंटीजन मैंने ले लिया। तो बी कैन नॉट बी अ ब्लड डोनर टू ए। अब देखते हैं क्या ए बी डोनेट कर सकता है। अब वही प्रॉब्लम है, ए बी के पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, सेम कहानी है ना। अब हम देखेंगे क्या ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। अब ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ओ के पास एंटीबॉडी एंटी ए है एंड एंटीबॉडी एंटी बी है, और ये कितना है? लेस देन 1% ऑफ द प्रोटीन्स। यानी कि थोड़ी सी लड़ाई तो होगी। और थोड़ी सी लड़ाई क्यों होगी? इस पूरे स्क्रीन को ध्यान से देखना। थोड़ी सी लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि ये एंटी ए जाके एंटीजन ए से लड़ने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई, इसलिए मैं लिख रहा हूं ट्राई, ये आम भाषा में मैं बोल रहा हूं। बट वाई इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम? भाई सिंपल आंसर है, एंटीबॉडी एंटी ए बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में रिसीव हुआ, एंटीजन ए बहुत बड़ा है, मेरा खुद का ब्लड बहुत बड़ा है, तो जितना थोड़ा सा एंटी ए रिसीव भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो प्रॉब्लम कब होगा? जब रिसीव्ड एंटीजन के खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी हो। जब
प्रेजेंट एंटीजन के खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी रिसीव हो रही है, ओके बिग डील, कोई इशू नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप को कौन दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। सेम लॉजिक लगेगा बी के ऊपर। बी को कौन दे सकता है? ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ओ को कौन दे सकता है? अब देखो ओ के पास एंटी ए भी है, एंटी बी भी है, यानी अगर उसने किसी ने ए ब्लड ग्रुप दिया तो एंटीजन ए से लड़ाई हो जाएगी, बी ब्लड ग्रुप दिया तो एंटीजन बी से लड़ाई हो जाएगी, ए भी दिया तो दोनों से लड़ाई हो जाएगी। तो ओ जो है सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से उसको लेने का इजाजत नहीं है। इट कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम एनीबडी एल्स। सो दैट इज वाई ओ बेचारा सबसे बेचारा है। ओ सिर्फ ओ ले से सकता है। ए के पास दो ऑप्शन है, बी के पास दो ऑप्शन है, बट ओ के पास सिर्फ एक ऑप्शन है ओ। ए बी किससे ले सकता है? वेल, ए बी सबसे ले सकता है। क्यों? इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, राइट? सॉरी, इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। नो एंटी ए, नो एंटी बी। और रिसीवर का एंटीबॉडी जो है नहीं होना चाहिए फॉर डोनर का एंटीजन। रिमेंबर, रिसीव्ड एंटीजन मैटर्स। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। रिसीव्ड एंटीजन मैटर्स। जो एंटीजन मैं रिसीव करने वाला हूं उसके खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। तो अगर ब्लड ग्रुप ए ने डोनेट किया, ए के पास एंटीजन ए है, ओके, इसके पास एंटीबॉडी एंटी ए है ही नहीं। बी के पास एंटीजन बी है, इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है ही नहीं। ए बी के पास दोनों एंटीजन है, कोई बात नहीं, इसके पास ना एंटी ए है ना एंटी बी है। ओ के पास तो भाई कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ओ के पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी जरूर है। ओ के पास, ध्यान से सुनना, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज जरूर है, बट ये क्यों काम नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि रिसीव्ड ब्लड का एंटीबॉडी लेस देन 1% ऑफ प्रोटीन्स और मेरे पास 4 लीटर ऑफ ब्लड, डाइल्यूशन इफेक्ट। ठीक, तो ओ सबको दे सकता है। इस ग्राफ से हमें क्या आया, समझ में आया? ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर and AB is a universal recipient। O सिर्फ और सिर्फ सॉरी, O सबको दे सकता है लेकिन सिर्फ O खुद से ले सकता है। AB ऑन द अदर केस सबसे ले सकता है, बट वो देगा किसको? सिर्फ AB को दे सकता है। ओके, AB सिर्फ AB को दे सकता है लेकिन O सबको दे सकता है। ओ सिर्फ ओ से ले सकता है लेकिन सबको दे सकता है। इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर आप रटोगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ मैं ऐसा स्टेटमेंट जरूर फ्रेम कर पाऊंगा जिससे मैं आपको फंसा सकता हूं। अगर आपने समझ लिया ना लॉजिक, तो कोई आपको फंसा ही नहीं सकता। ठीक, इफ दिस इज क्लियर, विल जंप टू द आरएच सिस्टम। अब आरएच सिस्टम इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक, आरएच सिस्टम किस वजह से है? तो मेरे पास RH एंटीजन, या उसको हम डी एंटीजन भी कहते हैं, मंकीज में, रीसस मंकीज में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था RH। ठीक, अब आप इसको सिंपली डी एंटीजन कह लो, RH एंटीजन कह लो, कोई बात नहीं ना। RH एंटीजन, सो वी कैन बी RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। सिर्फ दो चीजें हो सकती है। अगर RH पॉजिटिव है तो हमारे पास RH एंटीजन होगा और हमारे पास एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं होंगे, क्योंकि रूल क्या है? डोंट मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। अगर हम RH निगेटिव हैं तो मेरे पास एंटीजन नहीं होगा, एंड आई विल मेक, ध्यान देना, विल, I will make antibodies after first exposure। ये एक
क्रूशियल डिफरेंस है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में और ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में मेरी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाया था वो मैग्नीफाई हो गए थे क्योंकि सराउंडिंग बैक्टीरिया के पास सिमिलर एंटीजेंस होते हैं। बट जो RH है ना, उसके साथ ऐसा नहीं है। RH के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंटीबॉडीज मेरे पास सभी आएंगे जब मैं रियली में RH एंटीजन से एक्सपोज होऊंगा। सिर्फ और सिर्फ तभी मेरी बॉडी सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंटी-RH एंटीबॉडीज बनाएगी। एक सेकेंड बेटा, आई एम गेटिंग अ कॉल, आई थिंक। ओके कूल। सो मेरी बॉडी RH एंटीबॉडीज तभी बनाएगी जब मैं सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में RH एंटीजन से एक्सपोज हो। तो RH निगेटिव वाले बंदे जिनके पास RH एंटीजन नहीं है, कैन दे एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव इंडिविजुअल? अब देखो, अगर RH निगेटिव वाले ने RH पॉजिटिव ब्लड लिया तो उसके अंदर एंटी-RH एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो RH निगेटिव निगेटिव से लेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से लेगा। अगर RH पॉजिटिव ने RH निगेटिव से ब्लड ले लिया तो कोई बात नहीं। क्यों? RH देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, याद रखना ये बात। पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है, बट अगर पॉजिटिव ने निगेटिव से लिया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव के पास तो एंटीजन था नहीं, एंटीजन था नहीं तो एंटीबॉडी था नहीं, और एंटीबॉडी नहीं था तो मैंने लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। बट अगर मैं निगेटिव था, मैंने पॉजिटिव एंटीबॉडी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ले लिया, अब मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। सो दिस इज नॉट अलाउड एंड दिस इज अलाउड। तो RH पॉजिटिव वाला किसी से भी ले सकता है, RH निगेटिव वाला सिर्फ RH निगेटिव से ही लेगा। ठीक, अब यहां पे कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब मदर इज RH निगेटिव एंड द फादर इज RH पॉजिटिव। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है पिछले बार कि RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, यानी मदर और फादर अगर RH पॉजिटिव हैं तो बच्चा का RH पॉजिटिव होना ऑलमोस्ट तय है। ऑलमोस्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। जेनेटिक्स इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड विच वी विल स्टडी इन द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हिट्रोजाइगस के केस में जरूरी नहीं है कि माता पिता अगर RH पॉजिटिव हो तो बच्चा RH पॉजिटिव ही होगा, नहीं, दिस 25% चांस कि बच्चा RH नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये बात को आप याद रखना। ओके, सो मदर अगर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो बेबी जो फर्स्ट चाइल्ड होगा दैट विल बी RH नेगेटिव। अब बात क्या है, सॉरी माय बैड, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा। क्यों? RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है। अब फर्स्ट चाइल्ड जब RH पॉजिटिव है तो फीटल ब्लड, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड प्लेसेंटा से सेपरेटेड होता है। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक ऑर्गन होता है जो मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी को न्यूट्रिशन, गैसेस, वेस्ट का एक्सचेंज सप्लाई देता है। ब्लड नहीं मिल रहा, याद रखना, द ब्लड फ्रॉम द मदर बॉडी डज नॉट क्रॉस इनटू द फीटल बॉडी, द ब्लड फ्रॉम द फीटल बॉडी डज नॉट क्रॉस इनटू द मदर बॉडी। हाँ, डिफ्यूजन पॉसिबल है। ठीक, तो जब बेबी RH पॉजिटिव है तो बेबी का प्लाज्मा डिफ्यूज थोड़ा बहुत हो सकता है। ग्लूकोज, वेस्ट, ऑक्सीजन मदर से बेबी को डिफ्यूज करके मिल सकते हैं, बट बेबी का RH पॉजिटिव एंटीजन RBC के सरफेस पे है। सेल RBC जरा जैसा बड़ा, नॉट बड़ा सेल बट सेल प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर के पास नहीं आएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट डिलीवरी इज विदाउट कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ही नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम में। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है
तब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के बच्चे को सेपरेट करते हैं, और जो प्लेसेंटा होता है वो इवेंचुअली बॉडी, मदर का यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान उसको भी थोड़े घंटों में बाहर फेंक देता है। अब प्लेसेंटा जो है मदर और फीटस के टिश्यू से मिलकर बना था, तो जब ये प्लेसेंटा टीयर अवे हो रहा है, प्लेसेंटा थ्रो डाउन हो रहा है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मदर का ब्लड फीटल के ब्लड से एक्सपोज हो जाएगा। फीटल का ब्लड जो प्लेसेंटा में था, क्योंकि प्लेसेंटा दोनों मिलकर बनाते हैं। सो फर्स्ट डिलीवरी इज विदाउट कॉम्प्लिकेशन, बट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होगा? फीमेल का ब्लड गेट्स एक्सपोज्ड टू फीटस का ब्लड। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा एक दीवार थी, उस दीवार को हमने तोड़ा है। अब दीवार के टूटने की वजह से जो फीटस का थोड़ा बहुत ब्लड प्लेसेंटा में था वो मैटरनल ब्लड सप्लाई से फ्यूज हो गया। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कोरियोनिक विलाई माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे टीयर हो जाता है इस वजह से। ठीक, अब जैसे ही मदर का नेगेटिव ब्लड फीटल के पॉजिटिव ब्लड से मिलेगा, द मदर विल मेक एंटी RH एंटीबॉडी। मदर बना लेगी एंटी RH एंटीबॉडी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो गया विदाउट कॉम्प्लिकेशन, बट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ मदर ने एंटी RH एंटीबॉडी कुछ हफ्तों में अब बना लिया। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, ड्यूरिंग दी सेकेंड प्रेगनेंसी ये एंटी RH एंटीबॉडीज विल क्रॉस प्लेसेंटा and they will attack fetal RBCs। यहां पे आता है पंगा, ठीक है, क्योंकि RBC बड़े सेल्स थे, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते थे, एंड कई सारे एंटीबॉडीज भी क्रॉस नहीं कर सकते, बट ये पर्टिकुलर तरह का एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है। तो सेकेंड टाइम जब फीटस फिर से फीटस फिर से RH पॉजिटिव होगा, तो फीटल RBC के RH पॉजिटिव सेल्स को मदर का एंटी RH बॉडी अटैक करेगा। इससे क्या होगा? RBCs विल डाई, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है क्योंकि फीटल का RBCs मरते जा रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस और hemolytic disease of newborn। रटना नहीं इसको, फीटालिस फीटस का, इराइथ्रोब्लास्टोसिस। इराइथ्रोब्लास्ट एक प्रीमेच्योर स्टेज का नाम है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ RBC। सो इराइथ्रोब्लास्ट को अटैक किया जा रहा है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। हीमोलाइटिक डिजीज, ऐसा डिजीज जिसमें ब्लड को तोड़ा जा रहा है, हीमोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान द बेबी डेवलप्स इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस और हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। अब इसको कैसे सेव करें? हाउ टू प्रिवेंट दिस? आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक समय था जब 50% ऑफ ऐसे केसेस में सेकेंड प्रेगनेंसी इज डेडली, ठीक है, बट प्रिवेंशन अब कैसे करते हैं? फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जैसे ही हुआ तो मदर को एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया जाता है। क्यों? थोड़ा सा अमाउंट, मदर में फीटस का थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड गया था, है ना, RBC गए थे। अगर इस थोड़े से RBC को मैं अभी ही खत्म कर दूं तो मदर कभी एंटीजेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी ही नहीं। सो एंटी RH एंटीबॉडी, जिसका कॉमर्शियल एक नाम था रोगाम, एक इंजेक्शन दिया जाता है, और इस इंजेक्शन से क्या होता है, हमने अभी अभी जो जो RH एंटीजन एंटर किया मदर के बॉडी में, उन RBCs को डिस्ट्रॉय कर दी। तो मदर के बॉडी को कभी मौका ही नहीं मिला टू प्रिपेयर एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट। तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी स्मूथ होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टू ब्लड सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट। सो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल डोनर बेस्ड ऑन ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम।
आरएच सिस्टम एवियो सिस्टम के केस में की डिफरेंस क्या है? आरएच सिस्टम में एंटीबॉडीज सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में तभी बनेगा जब फर्स्ट रियल ब्लड एक्सपोजर होगा, खुद से नहीं बनने वाला। बट एबियो सिस्टम में इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कारण सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है और इसमें हम और डेप्थ ऐड करते हैं इन द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट है, लीव दी डाउट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर, और इफ जरूरत पड़ा एक दूसरा वीडियो बना देंगे। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।